ضلع جہلم تحصیل پنڈ دادن خان میں دریالہ جالب کے سٹاپ کو کراس کر کے ہم جا رہے ہیں قلعہ نندنا، جہاں آپ کو دکھائیں گے ایک حیرت انگیز عجوبوں کے مجموعوں کی دنیا، جہاں پر 3 مختلف ادوار کی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ کا میزبان سید سجاد بخاری آپ سے مخاطب ہے ایس ایس پوڈ کاسٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم آپ کو جس جگہ پہ لائے ہیں یہ تاریخی اعتبار سے بڑی مشہور و معروف جگہ ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ جہلم تحصیل پنڈ دادن خان کے گاؤں خوبصورت گاؤں باغاں والا کی یہ مشہور و معروف جگہ قلعہ نندنا ہے، جہاں پر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جس سائڈ پہ ابھی کیمرہ جا رہا ہے اس سائڈ پہ یہ باغاں والا گاؤں ہے جو آپ کو پہاڑ کی دامن میں نظر آ رہا ہے، کچھ اس کی آبادی پہاڑ کے اوپر ہے کچھ نیچے، اور جو یہ سامنے روڈ اس سائڈ پہ آ رہی ہے، رائٹ سائڈ پہ کیمرہ لائیں گے، یہ سیدھا رستہ جو ہے وہ قلعہ نندنا کی طرف جا رہا ہے، جو کہ آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9ویں صدی میں 9ویں عیسوی صدی میں بنایا گیا تھا۔ باقی تاریخ ہم انشاءاللہ آپ کو قلعہ نندنا پہ پہنچ کے بتائیں گے۔ ابھی ہم اپنا سفر آگے کی طرف شروع کرتے ہیں۔ میرے تک تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں جہاں ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ قلعہ نندنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو مسجد بھی نظر آ رہی ہے، اس کی باقیات بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد البیرونی صاحب کی لیبارٹری بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ابو ریحان البیرونی مسلم سائنٹسٹ کی لیبارٹری بھی۔ یہاں سے تینوں چیزیں فوکس آ رہی ہیں۔ یہ وہ پہاڑی کا اوپر والا سرا جہاں پر ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور آپ کو ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت سے روشناس کروائیں گے۔ نہیں جی، ابھی ہم آ گئے اس جگہ پر جو کہ دیکھنے میں اس وقت ایک متروک سی پرانی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، جو کہ پرانے دور کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، لیکن بیسیکلی یہ بڑا خاص راستہ ہے۔ یہ وہ شاہی خاندان کے راستے تھے جہاں سے جو شاہی فیملیز تھیں، پہلے ہندو راجاؤں کی، اور بعد میں محمود غزنوی التشمس جب آئے یہاں پر تو ان کی جو شاہی فیملیز تھی، یہ وہ راہداری تھی جہاں سے وہ استعمال کر کے محفوظ راستے سے قلعے کی اوپر کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ دکھائیں، یہ بڑا پرانا راستہ ہے، یہ مین گیٹ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ یہاں سے شاہی خاندان کی فیملیز جو ہیں وہ اوپر جایا کرتی تھی۔ اور یہ تاریخی واقعہ، یہ تاریخی راستے ہمیں یہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں نے بتائی ہے حقیقت کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے شاہی خاندان، صرف شاہی خاندان کی رسائی تھی، باقی کوئی فیملی بھی قلعے میں رہنے والی یا آرمی میں یا سول کوئی بندہ بھی یہاں سے اس راہداری کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف شاہی فیملی استعمال کیا کرتی تھی۔ یہ باغات بھی ہیں جی، 7 رستے میں آ رہے ہیں۔ باغا والا گاؤں کا نام ہے، اور باغا والا میں باغات نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہائکنگ ٹریک 1 کلومیٹر آ گیا جی، ننا فورٹ 2 کلومیٹر آ گیا جی۔ یہ البیرونی ریسرچ سینٹر اینڈ پبلک ٹوائلٹس بھی ہیں اس سائڈ پہ بنے ہوئے، اور یہ وہ ٹریک ہے جی جو عمران خان گورنمنٹ نے یہاں پر بنوایا تھا، اور اسی ٹریک کو اب ساری دنیا یوز کر رہی ہے اوپر جانے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی کچا ٹریک تھا، اب جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ ٹریک جانے میں کم از کم کافی آسانی ہو رہی ہے۔ اس باغ کو ذرا فوکس کریں آپ، یہ وہ باغ ہے جی جو بالکل یہاں ساتھ اس جیسے یہاں لاتعداد باغ ہیں اس علاقے میں۔ یہ دیکھیں آپ، جسے سیو بیر یا موٹے بیر بھی کہتے ہیں، پیوندی، یہ جامن کے درخت ہیں اس میں بہت سارے، اور یہ شہتوت کے درخت ہیں اس میں ماشاءاللہ، اور کھجور کے درخت ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں کافی سارے اور پھولوں کے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر۔ یہ کافی بڑا باغ ہے جی، نخلستان ٹائپ بنا ہوا ہے، جیسے کہ آم کے درخت بھی ہیں اس میں، اور یہ وہ ٹریک ہے جی جس پر جانا انشاءاللہ بڑا آسان ہو گیا ہے، اس سے پہلے یہاں بڑا مشکل تھا۔ اس تاریخی راستے پر پیدل سفر کرتے ہوئے میرے دل میں اچانک اس موجودہ پیدل ٹریک کی اہمیت کا احساس ہوا کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے تاریخی ورثے سے عشق کو اس علاقے تک بھی پہنچایا، اور نندنا کے قلعے کی تزئین و آرائش اور پہاڑی کے اوپر جانے والے راستے کو بنوانے کے لیے باقاعدہ پلان بنایا۔ یہاں پر بطور پاکستان وزیر اعظم تشریف لائے، اور اس وقت کے پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر چودھری فواد صاحب کی کاوشوں کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ انتہائی بلندی کی طرف جاتے ہوئے گہری کھائیوں کو دیکھنے کے بعد قلعہ نندنا بنانے والے انجینئرز کی مہارت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پر بیرونی افواج کا حملہ کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ قدرتی طور پر گہری کھائیاں اور چٹانیں حفاظتی اراول دستے کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ اس ٹریک کی بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو وزٹرز بھی یہاں تشریف لائیں وہ اپنے ساتھ اوپر جاتے ہوئے پانی ضرور لے کر جائیں، کیونکہ چشمے صرف پہاڑوں کے دامن میں ملتے ہیں، بلندی پر نہیں۔ اور جو تاریخ کے شوقین حضرات یہاں تشریف لائیں انہیں 2 کلومیٹر پہاڑی راستہ چڑھ کر قلعہ کی بلندی تک پہنچنا ہوگا، لہٰذا وہ اس متوقع تکلیف کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ ویسے حیرانی کی حد تک یہ بات ذہن میں گردش کرتی ہے کہ آج سے
1000 साल पहले घोड़ों, खच्चरों और मजदूरों की पीठों पर सामान लाद कर पहाड़ चढ़ना आसान काम हरगिज हरगिज नहीं था। किले की ऊपरी सतह पर आने के बाद इस बात का एहसास मजीद गहरा हो गया कि जो तरक्याती काम यहाँ पर शुरू किए गए थे वो अभी तक दोबारा शुरू नहीं किए जा सके। हम इसी अपने वीलॉग के जरिए मौजूदा हुकूमत से भी इल्तमास करते हैं कि इस तारीखी विरसे को बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। किला नन्ना चुवासैदन शाह से 12 मील मशरक में है, जिसका रकबा तकरीबन 45 कनाल से ज्यादा है। इस किले पर हिंदुस्तानी सिलसिले के राजा 11वीं सदी तक हुक्मरान रहे। यहाँ पर हिंदू शाही राजा अनंद पाल के बेटे जयपाल ने शिव का मंदिर तामीर कराया था। संस्कृत जुबान में नंदना का मतलब बेटा है। इस किले का नाम इंद्र देवता के देवमलाई तारीख बाग के नाम पर रखा गया था। मशहूर तारीखदान सर औरल के मुताबिक सिकंदर आजम की अफवाज ने भी दरियाए जेहलम को पार करने के लिए यही रास्ता इख्तियार किया था, जो उसने तहसील पिंड दादन खान के कस्बा जलालपुर शरीफ के मकाम से पार किया था। बाद में ये इलाका महमूद गजनवी और भीमपाल की फौजों का सन 1014 में मैदान जंग भी बना। इस किले का जिक्र तारीख में सन 991 ईस्वी में मिलता है। बाद में यह किला जलालुद्दीन ख्वारिज़मी के जेर कब्जा भी रहा, मगर 1021 ईस्वी में चंगेज खान के हाथों शिकस्त ने इस किले को मंगोलों की बादशाही भी दिखाई। बाद में अल्ततमश की फतूहात भी इस किले में शामिल हो जाती हैं। अल्ततमश के बेटे महमूद ने सन 1247 में कोहे नमक के राजा, जो कि चंगेज खान का हमरकाब था, को सजा देने के लिए किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मुगलों के बादशाह अकबर और जहांगीर ने भी इस किले को शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। अकबर ने एक बाग भी लगवाया, जो कि बागांवाला गांव की वजह तस्मिया भी बन गया। पहाड़ों के दरमियान वाक़ दिफाई नोयत का हामिल ये किला नंदना पास की निगरानी और शुमाल मगरब से हमलावरों की रोकथाम के लिए बनाया गया था। नंदना पास पत्थर का वो रास्ता था जो दिल्ली को जदीद दौर के अफगानिस्तान से मिलाता था। मशहूर डच स्कॉलर PHL एग्रमोंट ने अपनी मशहूर किताब अलेक्जेंडर कैंपेन इन सिदरन पंजाब में इस दरे का तस्करा इसी रास्ते के तौर पर किया है, जिसे सिकंदर आजम ने 326 कबल मसीह में राजा पोरस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया था। एक और काबिल जिक्र बात भी है कि सिकंदर यूनानी की फौज के घोड़ों ने पहली बार इसी मुहिम के दौरान पत्थर चाटकर ख्यूड़ा में नमक के कानों की असलियत दरियाफ्त की थी। मंदिर तबाहशुदा हालत में है, लेकिन देखा जा सकता है कि इसकी 2 मंजिलें थी और एक जीना बलाई मंजिल को जाता था और दूसरा मंजिल के गिर्द भी एक राहदारी थी। कटास का बड़ा मंदिर भी अंदर से इसी तर्ज पर तामीर शुदा है। गालिबन इस खित्ते के पुरअमन दिन वो थे जब ये कश्मीरियों की हुकूमत में था। करकोटा खानदान के बादशाह यहाँ पर हुकूमत करते रहे थे। ये इमारतें जो शाहीना मंदिरों के नाम से मशहूर हैं, जैसे कटास राज और नंदना, अगली 4 सदियों तक मजहबी सरगर्मियों का मरकज रहीं। अब इन मंदिरों के खंडरात में कोई ज़ायरीन नहीं है, सिर्फ तारीख और आसार कदीमा में दिलचस्पी रखने वाले सियाह हैं, जिनके लिए साल्ट रेंज की ये इमारतें एक शानदार माजी की याद दहानियां हैं। नंदना में आज हमारे पास जो कुछ है वो एक किले के खंडरात हैं, जिसमें एक मंदिर है और एक मस्जिद मिलती है। किला नन्ना को एक बहुत बड़ा एजाज भी हासिल है कि यहाँ बैठकर अबू रेहान अल बैरूनी, जो कि एक मुमताज मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने जमीन का कतर नापा था। आज के जदीद आलात के जरिए जो पैमाइश की जाती है उसमें सिर्फ 16.8 किलोमीटर का फर्क है। महमूद गजनवी ने इस किले को फतह करने में 7 दिन लगाए, जहां पर अल बैरूनी ने अपनी तजर्बागाह का तामीर की और इस दौर के साइंसी आलात नस्ब किए, जिन्हें हिंदू लोहे की कमानें कहते थे। इस दौर में नंदना में पानी की शदीद किल्लत थी, जिसे दूर से लाना शूद्रों की जिम्मेदारी थी। हिंदू पंडितों का अकीदा था कि कोहिस्तान नमक में मीठे पानी का तमाम जखीरा कटास राज के नीचे था, जिस पर अल बैरूनी ने किला की चट्टानों का मुतालिया किया और एक चट्टान के नीचे खुदाई करवाकर मीठे पानी का चश्मा भी दरियाफ्त कर लिया। इस पर पुरोहितों ने अल बैरूनी को
विद्या सागर का खिताब भी दिया। अबू रेहान मोहम्मद अल बैरूनी चंद जराये के मुताबिक 4 सितंबर 973 के दिन पैदा हुए थे। अबू रेहान अल बैरूनी को माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेहद लगाव था। वो एक जीरक रियाजीदान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इल्म फल्कियात को हासिल करने में गुजारा। वक्त से मुतल्लक उनकी इस दीवानगी की वजह दरअसल कुरान मजीद में अल्लाह की तरफ से दिया गया यह हुक्म था कि सूरज और चांद की हरकत पर गौर करो। हमें उनके बारे में जितना भी मालूम हुआ है वो उसकी वजह उनके चांद और सूरज ग्रहण से मुतल्लक मुशाहिदे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान पर एक मशहूर किताब किताबुल हिंद लिखी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के अकीदों, तहजीब और सकाफत से मुतल्लक तहकीक की जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्हें मुतालिया हिंद का बानी भी कहा जाता है और उस तरह अल बैरूनी मौजूदा वक्त को कैद करने की जस्तजू में भी कामयाब हुए। उन्होंने इंडियन नजरियात को अपनी तहरीर के जरिए मुस्तकिल शनाख्त बख्शने की कोशिश की। अल बैरूनी ने इन मज़ाहिब की तारीख पर गौर किया। ये देखा कि वह अपने कैलेंडर कैसे बनाते हैं और उनके त्यौहार और दीगर तकरीबात कब मुनक्कद होती हैं। उनकी किताब के पहले 3 बाब मज़ाहिब की बुनियाद के बारे में हैं, यानी ये सब वक्त का हिसाब कैसे लगाते हैं। जब महमूद गजनवी ने इंडिया के उन हिस्सों पर हमले किए जो आजकल पाकिस्तान कहलाते हैं, तो अल बैरूनी भी उनके हमरा थे और इस दौरान महमूद गजनवी ने मुतअद्दिद ब्राह्मण ज़ात के हिंदुओं को जंगी कैदी बनाया। ये ब्राह्मण अल बैरूनी के लिए इंडिया के बारे में वहाँ के मज़ाहिब से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने का अहम ज़रिया बने। अल बैरूनी की तजर्बागाह के साथ ही सुल्तान महमूद गजनवी की बनवाई हुई मस्जिद भी मौजूद है और ये मस्जिद आज भी अपने उसी साबका स्ट्रक्चर के साथ है। इसके कुछ ना कुछ रेनोवेशन का काम ज़रूर करवाया गया है और इसके नज़दीक जाकर देखें तो पुराने पत्थरों को महसूस करने के बाद महसूस होता है कि ये सैकड़ों साल पत्थर कितने मजबूत रहे होंगे जो आज भी पूरी आबोताब के साथ इस स्ट्रक्चर को संभाल के खड़े हुए हैं। इसका एक मरकजी दरवाजे के अंदर जाएं तो 3 दरवाजे आते हैं, उसके लॉन को क्रॉस करें दलान को तो आगे फिर मस्जिद आ जाती है जो कि मरकजी एरिया कहलाता है और यहाँ पर तकरीबन 100 से 200 आदमी बैक वक्त नमाज पढ़ने की जगह रखते हैं। और इस मस्जिद को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि जब मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया तो किला नंदना में शिव मंदिर के साथ एक मस्जिद की मौजूदगी मुसलमानों के ताबनाक माजी की अक्कासी करती है। किला नंदना और मस्जिद के तकरीबन 500 गज के फासले पर एक कब्रिस्तान के निशानात मिले तो हम बेख्तियार उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरते हुए जब इस कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए एहसास हुआ कि ये उस वक्त के यकीनन मुसलमान फ़ौजों के जो सिपाही थे उनकी कब्रों के निशानात हैं, क्योंकि हिंदुओं के तो कब्रें बनाई ही नहीं जाती, उनका तो शमशान घाट में जलाया जाता है। लिहाजा कवी इम्कान यही है कि सुल्तान महमूद गजनवी और बाद में मुग़ल हुक्मरानों के साथ आने वाली फ़ौजों के जो सिपाही यहाँ पर वफात पाए थे ये उन्हीं की कब्रें हैं। और उस तरफ जाते हुए ये एहसास भी हुआ कि इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर कर ये कब्रिस्तान बनाया गया है और जो कि आबादी से उस वक्त के हिसाब से काफ़ी दूर था और ये एक ऊंचा सा टीला है जहाँ पर ये कब्रिस्तान है और इंतहाई मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए एहसास हुआ कि उस वक्त यहाँ ताबूत लाना कितना मुश्किल रहता होगा। कि हर चीज़ आपको दिखाई जाए ताकि कुछ तशनगी ना बाकी रहे। मुझे सांस फूल रहा है मेरा, क्योंकि इसलिए मैं शायद यहाँ पर ओवर वॉइसिंग कर दूँ। ये मुझे सामने कब्रें नज़र आ रही हैं जी, ये देखिए पुराने पत्थरों की, पुराने पत्थर, बहुत ज़्यादा पुराने पत्थर नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है। ये मैं नज़दीक कैमरा करता हूँ, आप देखें कि ये कितने हज़ारों साल, सैकड़ों साल पुरानी कब्रें नज़र आ रही हैं और पत्थर ज़माने की आबादत के साथ साथ पत्थरों की शेप भी तब्दील हो गई है। बारिशें और मौसमी हालात ने इनको, ये देखें पत्थर किस कदर पुराने पत्थर हैं। डेफिनेटली ये सैकड़ों साल पुरानी कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान जिसको अब थोड़ा महफूज किया गया है नवादरात के तौर पर, अजायबात के तौर पर,
یہ قبر دیکھیں، اس کے اوپر یہ چبوترا سا بنایا گیا ہے کہ تاکہ یہ صحابی نام رہے باقی صرف اللہ کا. اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہر چیز نے فنا ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر بے جان چیز نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. سوائے اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کچھ باقی رہنے والا